Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, this is the second part of the chapter 7, that is an island of trees. Students, yesterday we read grandfather affection towards trees and flowers and the protection of trees for the temple and the protection of temple for the trees. So students, yesterday we have done till here. Today we are going to start from here. So students, let's begin. Did you know that I used to climb trees when I was young? When I was a girl, this jackfruit was my favorite tree. It's quite easy to climb. You can climb it too, can't you? So now grandmother she's saying that when she was young, she was very much fond of climbing trees. It means कि जो grandmother है वो अपनी granddaughter से क्या बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि मैं जब यंग थी जब मैं गर्ल थी तब मैं पेड़ पे चढ़ा करती थी और जो जैक फ्रूट था वो मेरा फेवरेट ट्री था ठीक है क्योंकि उस पर जो चढ़ना था क्लाइंबिंग करना वो बहुत इजी था तो क्या तुम कर सकती हो या नहीं Another good tree was the banyan tree behind the house. Its spreading branches which hung to the ground and took root again and formed a number of twisting passageways. Now, another tree she talks about here that was banyan tree and it was behind the house and it spreads its branches which hung to the ground and took root again and then formed a number of twisting passageways. It means कि अब वो यहाँ पर जो है एक और ट्री के बारे में बात करती है जो बनियान ट्री था जो घर के पीछे था ठीक है और इसकी जो ब्रांचेस थी मतलब जो पेड़ों की जो शाखाएं थी पेड़ों की फैलाने वाली शाखाएं जो जमीन पर लटकी हुई थी और फिर से जड़ें लेती थी और कई तरह के ट्विस्टेड पैसेजवेज को बनाती थी ठीक है इससे कई सारे जो ट्विस्टेड पैसेजवेज जो थे वो बने हुए थे द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस older than my grandparents. Now she tells that the tree was older than the house. जो ट्री था वो ओल्ड था हाउस से और ग्रैंड पेरेंट्स से भी ठीक है आई कुड हाइड इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड अ स्क्रीन ऑफ थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो इट मींस दैट शी वाज सेइंग कि इसकी ब्रांचेस में छुप सकती थी ठीक है इसकी जो ग्रीन लीव्स है उसके पीछे भी वो छुप सकती थी और पूरे वर्ल्ड की जासूसी जो है पूरे वर्ल्ड को ऊपर से बैठकर नीचे देख सकती थी Yes, the banyan tree was a world in itself, populated with small animals and large insects. While the leaves were still pink and tender, they would be visited by delicate map butterfly who left her eggs to their care. Now she is saying that the banyan tree it was world in itself. Okay. Why? Because it was populated. It was full of small animals and large insects. Okay. And then it was also visited. It also had delicate maps butterfly who left their eggs there so it would just be safe there. Okay. तो जो बनियान ट्री था जो बनियान ट्री था वो अपने आप में एक वर्ल्ड था ठीक है अपने आप में क्या था एक वर्ल्ड था जिसमें कई सारे स्मॉल पॉपुलेटेड था मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड था वो उसमें कई सारे स्मॉल एनिमल्स लार्ज इंसेक्ट्स रहते थे ठीक है इसके अलावा जबकि देखा जाए जो उसकी लीव्स थी वो पिंक और टेंडर थी ठीक है जिसपे कई इतनी कोमल थी मतलब जिस पर कई सारी जो बटरफ्लाई थी वो विजिट करती थी और वो अपने एग्स को वहां पर छोड़ के जाया करती थी ताकि उनकी वहां पर केयर हो सके ठीक है सो इट वॉज वेरी नाइस So, students, the honey on the leaves, a sweet, sticky smear, also attracted the little striped squirrels, who soon grew used to having me in the tree. They became quite bold, accepting food from my hand. It means, students, so the honey on the leaves of the banyan tree. So, what happened? All of it's not honey, but it's a kind of liquid that is formed with their it's something like a honey. Okay, all right. It was sticky smear. That means spread over the leaves. That this thing it attracted the little squirrels. And soon these squirrels they grew used to having grandmother in the tree. They became bold. They became friendly with the grandmother and they started to accept food from her hand itself. तो जो हनी था जो लीव्स पर बनियान ट्री के लिए लीव्स पर ठीक है क्या हुआ इट वॉज नॉट द हनी इट वॉज द काइंड ऑफ जस्ट लिक्विड मतलब एक तरह का लिक्विड था ये ठीक है क्या था जस्ट अ लिक्विड था
ठीक है, हनी के जैसा, जो स्वीट था, स्टिकी स्मेयर मीन्स चिपचिपा था, ठीक है, जो पूरी लीव्स पे चारों तरफ स्प्रेडेड था, फैला हुआ था। इसने जो स्क्वेरल्स थी उनको बहुत अट्रैक्ट किया और ये स्क्वेरल्स बहुत जल्द बड़ी हो गई, ठीक है, और ग्रैंड मदर जैसे उनके पास ही रहती हो, ठीक है, वो बोल्ड हो गई, ठीक है, ग्रैंड मदर से बहुत फ्रेंडली हो गई थी, ठीक है, और वो ग्रैंड मदर से जो फूड होता था उसको खुद से एक्सेप्ट कर लेती थी। So students, at night, the tree was visited by hawk cuckoo. Its shrill nagging cry. Its shrill nagging cry kept us awake on hot summer nights. We call the bird papiha. Okay. So then at night, the tree, it was visited by hawk cuckoo. Hawk cuckoo, it was the name of the bird. It was a kind of bird. So it cries and shout at night. And then they used to call this bird papiha, which means rain is coming. It means कि रात के समय shrill nagging cry का means क्या होता है? Shrill nagging cry होता है here, high pitched cry. That could be heard again and again. Means high pitch वाली जो cry होती है जिसे बार बार सुना जा सके. ठीक है, shrill nagging cry बोलते हैं. ठीक है, तो रात के समय में, ठीक है, देन एट नाइट, ठीक है, रात के समय में जब ये जो हॉक कुकूज थे ये ट्री पर विजिट करते थे, ठीक है, तो हॉक कुकूज, ठीक है, ये एक तरह का बर्ड है। इट वॉज अ काइंड ऑफ बर्ड, ठीक है, ये चिल्लाते थे, शाउट करते थे, क्राई करते थे रात के समय, ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता है? वी कॉल दिस बर्ड पपीहा। क्या बोलते थे? पपीहा बोलते थे, विच मीन्स इट्स रेन इज कमिंग। ओके, बट फादर सेड दैट अकॉर्डिंग टू इंग्लिशमैन लिविंग इन इंडिया इट सीम्ड to be shouting up and up the scale. Oh dear, how very hot's getting. We feel it, we feel it, we feel it. Okay, so although the hawk cuckoo, it used to cry in night, but Englishmen, according to father, Englishmen living in India during that time explained that the shouting was actually them saying that, oh dear, how very hot's getting. We feel it. Oh dear, we feel it, we feel it. इट मीन्स कि जो हॉक कुकू थे, ठीक है, ये रात में क्राई करते थे, ठीक है, ये रात में क्राई करते थे, लेकिन इंग्लिशमैन के अकॉर्डिंग, फादर के अकॉर्डिंग, जो इंग्लिशमैन थे उस टाइम पे, जो इंडिया में उस टाइम पे जो थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो शाउटिंग थी वो एक्चुअली क्या थी। क्या थी? अब देखो उसमें शाउटिंग अप एंड अप द स्केल का मीनिंग क्या है? शाउटिंग लाउडर एंड लाउडर, बहुत जोर जोर से शाउट करना, ठीक है, ठीक है, तो हालांकि जो हॉक कुकू थे वो रात में क्राई करते थे, तो इंग्लिशमैन, लेकिन जो इंग्लिशमैन थे अकॉर्डिंग टू फादर, फादर के अकॉर्डिंग जो इंग्लिशमैन थे इंडिया में जो उस समय के, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो शाउटिंग थी वो क्या थी, एक तरह की, वो क्या कहते थे एक तरीके से, ओ डियर, बहुत, इट्स वेरी, हाउ वेरी हॉट्स गेटिंग, इतना गर्म हो रहा है, वी फील इट, ठीक है, वी फील इट, तो इस तरीके से वो कह रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके से ये आवाजें निकाल रहे थे, क्राई कर रहे थे, शाउट कर रहे थे। ओके, so this is what the cuckoos were saying actually, why they were shouting. Okay students, now well the banyan has long since gone, it came down in a storm, aerial roots and all. Father planted another, but as you can see it's still quite a young tree. The banyan tree takes a long time to grow. So students, she says that the banyan tree, it has been a long time that it fell off during a storm. So now she says that the old one has been uprooted long time ago, but now you can see, है ना? But father he planted a new one. That one which you can see right now is the new one. It's quite young. ठीक है, तो बनियान ट्री जो है वो बहुत लंबे समय जो है पहले आंधी में गिर गया, ठीक है, तो वो कहती हैं कि जो ओल्ड वाला है वो उखड़ उखड़ चुका है बहुत समय पहले, लेकिन अब जो तुम देख सकते हो वो एक नया है, क्वाइटली यंग है, वो न्यू है, सो यू कैन सी, ठीक है, बिकॉज जो बनियान ट्री है वो काफी लंबा समय लेता है उसे वापस उगने के लिए, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू ग्रो. So students, your great grandfather wasn't content with planting trees in the garden or near the house. During the monsoon, he would walk into the scrubland and beyond the riverbed. Armed with cutting and saplings, he would plant them out there, hoping to create a forest. But grazing cattle always finished them off. So students, here she says that your great grandfather, he was very much happy to plant trees in the garden and anywhere near the house. And during the monsoon, he would walk near the scrubland. Scrubland means होता है area covered with short vegetation. ऐसा area जो short vegetation से covered हो, उसे हम बोलते हैं scrubland.
and beyond the river beds trying to with cutting and sapling. Saplings are the young plants. ठीक है, young plants, young trees को बोलते हैं. ठीक है, to plant them in those areas hoping to create a forest. But then all the grazing cattle they used to finish them off. So वहां पर यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि जो अपनी डॉटर से बोलती, ग्रैंड डॉटर से, कि जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत खुश होते थे प्लांट्स वगैरह करने में, प्लांटिंग करने में, ट्रीज को प्लांट करने में. उनको प्लांटेशन का बहुत शौक था, इसलिए वो गार्डन में या कहीं और जगह घर के आसपास प्लांटिंग करने में बहुत खुश होते थे. ठीक है, लेकिन मानसून में क्या करते थे वो, मानसून जब जैसे ही मानसून आता था, मानसून के टाइम पे वह क्या करते, खुद ही जाते स्क्रबलैंड में. ठीक है, और वहां पे खुद ही जाकर जो सैपलिंग्स वगैरह होते थे, जो यंग प्लांट्स होते थे, ठीक है, ठीक है, ये सारे वो वहां पर उगाते थे, ग्रो अप करते थे, उनको खुद से प्लांट करते थे ऐसे एरियाज में ताकि फॉरेस्ट को क्रिएट कर सके. लेकिन आखिर में जाके उनकी मेहनत क्या हो जाती थी, वेस्ट हो जाती थी. क्या होता था, जो कैटल होती थी वो सारी ग्रेस करके वो सारे उस चीज को, जो सारी भी खेती होती थी, जो भी प्लांट्स वगैरह होते थे, जो भी ट्रीज होते थे, उनको नष्ट कर देती थी, खत्म कर देती थी. No one ever goes there, I said. Who will see your forest? Okay, we are not planting it for the people to see, said my father. We are planting it for the earth and for the bird and animals who live on it and need more food and shelter. Okay, now the grandmother, she told her father that no one is going to see your trees there. Who will see your forests and why are you planting in such areas? तो क्या होता है, जो ग्रैंड मदर है वो, उन्होंने अपने पापा को बोला कि तुम ऐसे एरियाज में क्यों ट्रीज लगा रहे हो जहां पर कोई भी देखने नहीं आएगा, है ना. सो हु विल सी योर फॉरेस्ट, तुम्हारा फॉरेस्ट कौन देखेगा, एंड आप ऐसे एरियाज में क्यों प्लांटिंग कर रहे हो इन एरियाज में. अब फादर का रिप्लाई क्या आता है, फादर बोलते हैं हम लोग जो है वो प्लांटिंग इसलिए नहीं कर रहे ताकि लोग देखें, हम लोग प्लांटिंग जो कर रहे हैं वो अर्थ के लिए कर रहे हैं, उसमें रहने वाले जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए कर रहे हैं, जिनको फूड और शेल्टर की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर. दैट्स व्हाई वी आर प्लांटिंग द ट्रीज. दैट्स व्हाई प्लांटिंग द ट्रीज. इसलिए जो फादर है वो बोलते हैं कि इसीलिए उन्हें ट्रीज से अफेक्शन है, क्योंकि वो हमारी हेल्प भी करते हैं, क्योंकि वो हमें फूड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए मैं ऐसे एरियाज में, मुझे से मतलब नहीं है, मैं तो इनको इसलिए प्लांट कर रहा हूँ ताकि वो एनिमल्स और बर्ड्स का सहारा बन सके. So father told me why mankind and not only wild creatures need trees for keeping the desert away, for attracting rain, for preventing the banks of rivers from being washed away. But everywhere people are cutting down trees without planting new one, turning the earth into a great desert. So here Father, he explains the reasons, the point why we require trees. The first one is to keep the desert away. If there are no trees, no plants, so what will happen? The ground will become dry, isn't like deserted, will be like deserted. Okay, it means कि जो फादर है वो एक्सप्लेन करते हैं, वो पॉइंट्स, वो रीजन एक्सप्लेन करते हैं कि हमें ट्रीज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. ठीक है, तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, जो ग्राउंड है वो डेजर्ट बन जाएगा. ठीक है, डेजर्ट बन जाएगा, डेजर्ट की जैसा सूखा बन जाएगा बिल्कुल. ठीक है, इसके अलावा नदी के किनारों को बहने से रोकने के लिए, preventing the banks of river from being washed away, नदी के जो किनारे हैं उनको बहने से रोकने के लिए. But everywhere people are cutting down trees without planting new one, turning the earth into a great desert. लेकिन हर कोई जो है इंसान क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है बिना किसी नए प्लांट को उगाकर, वो ट्रीज को कट करता जा रहा है. इससे क्या हो जाएगा, अर्थ एक बहुत बड़ा डेजर्ट बन जाएगा. सो इसलिए ग्रैंडफादर जो है वो एक तरीके से एनकरेज करना चाहते हैं ताकि हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करें. दैट्स व्हाई द ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज द अर्थ विल बिकम द डेजर्ट. तो इसलिए ट्रीज जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस को फॉलो करते हैं. द thought of a world without trees become a sort of nightmare for me. It's one reason why I shall never want to live in a treeless moon. So now here grandmother, she says that the thought of a world without trees made her feel like a nightmare. So that's why it was one of the reasons why she never wanted to live on treeless moon. So students, जो ग्रैंड मदर है वो क्या कहती हैं कि जो वर्ल्ड का सपना है, थॉट ऑफ अ वर्ल्ड बिना पेड़ों के, तो वो एक तरीके से मेरे लिए क्या, एक बुरे सपने के जैसा है. तो इसीलिए यही उनमें से एक रीजन था कि वो जहां पर पेड़ नहीं हो वहां पर नहीं रहना चाहेंगी. मीन्स कि
उनको ट्रीज से बहुत प्यार था, वो ट्री से बहुत ज्यादा उनका भी अफेक्शन था। दैट्स व्हाई शी वांट्स टू लिव इन द वर्ल्ड वेयर ऑल हेयर आर ट्रीज, जहाँ पर हर जगह क्या हो, पेड़ हो। क्योंकि पेड़ जो होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो वो हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे हमारा जो वातावरण होता है, हमारा जो एटमोसफियर होता है, वो बहुत अच्छा रहता है। दैट्स व्हाई ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ।